हेलो बच्चों, तुम लोग अब तक एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में उस चैप्टर में पढ़ते रहे हो। तो उसमें हमने तुम लोगों को प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, सारी चीज़ें बताई हैं। जब एल्डिहाइड और कीटोन चल रहा था उसी बीच में हमने कुछ रिएक्शन बताए थे, पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन रिएक्शन इन कंपाउंड्स में होते हैं। तो उनके बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पहले थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, बता देते हैं तुम लोगों को। उसके बाद फिर हम आगे अगला कंपाउंड जो इस चैप्टर का है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन, जिसका तुम लोगों ने रिएक्शन देखा है जब हम एल्डिहाइड और कीटोन तुम लोगों को बता रहे थे। नाउ और सिंपली पॉलीमराइजेशन, what is polymerization and condensation, you know. Now here is some important points of these properties, that is polymerization and condensation. First, polymerization. What is polymerization? The process which involves union of two or more molecules of the same compound without the elimination of small molecules such as H2O, NH3 or alcohol, resulting in the formation of new compound whose molecular mass is a simple multiple of the original compound is called polymerization. एग्जाम्पल्स में देखा था किस तरह से जुड़ते हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से और एक ज़्यादा हैवी मॉलिकुलर मास का कंपाउंड बनाते हैं। द न्यू कंपाउंड फॉर्म इज टर्म्ड पॉलीमर। द ओरिजिनल सिंपल कंपाउंड्स फ्रॉम विच पॉलीमर्स आर मेड आर कॉल्ड मोनोमर्स। मोनोमर्स आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर्स। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन. It is generally a reversible reaction, that is the polymer can be converted easily into original compound. No problem of reacting molecules is eliminated. No C bond or CN linkage are formed and no portion of reacting molecule is eliminated in any form. Polymer and monomer both have the same empirical mass and formula, but the molecular mass of the polymer is simple multiple of the molecular mass of the monomer. The monomer usually consists of a multiple bond, that is double or triple, in its molecule. Alkenes, acetylenes, aldehydes undergo polymerization reaction. The polymer may be straight chain or cyclic. Now condensation. It is a process which involves union of two or more molecules of the same different substance to form a more complex compound with or without the elimination of water, hydrogen chloride, ammonia or alcohol, etc. with a new carbon-carbon or carbon-nitrogen linkage through functional groups. There are two types of condensation reaction. First, intermolecular condensation, when two functional groups of the same molecule react to eliminate a simple molecule. The reaction is known as intramolecular condensation. For the example, formation of gamma lactone from gamma hydroxybutyric acid. Now this is a compound gamma hydroxybutyric acid. Why it is known as gamma? कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये, CO और OH, और इधर फर्स्ट कार्बन, आफ्टर दिस कार्बन, फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, सेकंड बीटा एंड थर्ड गामा. So this is known as gamma hydroxybutyric acid. When goes condensation form gamma butyroactone. This is the condensation. Second is intermolecular condensation. This condensation reaction occurs between two or more molecules of the same or different compounds. A large number of intermolecular condensation reactions are observed in carbonyl compounds. Characteristics of condensation. Condensation is an irreversible reaction
Union occurs with or without elimination of water, HCl, NH3 or alcohol, etc. Mu Cc or Cn linkage are formed. Molecular mass of the final product may or may not be exact multiple of the molecular mass of the original monomers. So this is the polymerization and condensation. Now come on the study of carboxylic acid. Three types of compounds are in this chapter: aldehyde and ketone, and third is carboxylic acid. These are carbonyl, that is carboxyl group containing compounds. Now organic compounds containing organic carboxylic group, that is C double bond O and OH, are called carboxylic acid. In COOH group, both carbon oxygen double bond and OH groups are directly linked to each other. Now C of the CO bond is attached with OH. The acidic character in carboxylic acid is due to the presence of a replaceable hydrogen atom in the carboxylic group. Carboxylic acid may be aliphatic or aliphatic. When C attached with aliphatic alkyl group, this is aliphatic carboxylic acid, and then COOH attached with phenyl group or aryl group, it is known as aromatic carboxylic acid. Now the classification of the carboxylic acid. Depending on the number of COO group present in molecule, carboxylic acid may be classified as monocarboxylic acid, dicarboxylic acid and tricarboxylic acid. HCOH formic acid, CH3COOH acetic acid, propionic acid C2H5COH, C3H7COOH. All the acid contains only one COOH group is known as monocarboxylic acid. Second is dicarboxylic acid. When two carboxylic groups are present, then it is known as dicarboxylic acid. Example, oxalic acid. Name of the oxalic acid ethane 1,2 dioic acid. यहाँ पे दो कार्बन है. This is CH2 COOH group attached to the CHC carbon of the CH2. Then it is known as malonic acid. This is the succinic acid, CH2COOH, CH2COH, succinic acid. Now tricarboxylic acid. When three carboxyl group are present, the acid is known as tricarboxylic acid. Example, this is CH2 3COOH group are attached with this carbon and this carbon. Name propane 1 2 3. Propane 1 2 3 propane हो गया. 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड. इसी तरह ये है, यहाँ पे 5 कार्बन है और 3 COOH ग्रुप अटैच है, तो ये नाम हो जाएगा पेंटेन 135 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड. Now nomenclature of the carboxylic acid. Acids are named as alkanoic acid, that is alkane E minus करके oic acid लगा देते हैं. The name is derived by replacing E of the corresponding alkane by oic acid. अभी यहाँ देखा HCOOH है, एक कार्बन है, तो इसका हो जाएगा मेथेनोइक एसिड. CH3COOH 2 कार्बन है, एथेनोइक एसिड. दिस इज प्रोपेनोइक एसिड. दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड. 1 2 3 4 का COOH ग्रुप के कार्बन को हमेशा फर्स्ट नंबर देंगे, तो 1 2 3 4 5. अगर दूसरा ग्रुप कोई अटैच होगा तो इसी हिसाब से उसको नंबर देंगे. अब ये है, इसका नाम हो जाएगा 1 2 है 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड. दिस इज पेंटेनोइक एसिड. दिस इज 3 methyl butanoic acid. When OH group is attached with COOH group, then it is known as hydroxyl group. Now 2 hydroxy
propanoic acid. 3 carbon here, propanoic acid. General name of this compound is lactic acid. यहाँ amino group लगा है. This is the gamma carbon. After the C double bond O group, first carbon is alpha, second is beta, and third is gamma. Name 4-amino butyric acid. ये क्या हो जाएगा? 2-bromo-butanoic acid. This is 2,3-2,3-dimethyl butanoic acid. और जनरल नेम क्या होगा? अल्फा बीटा डाइमेथिल ब्यूटेरिक एसिड. इसी तरह सारे नाम लिखे जाएंगे. आगे अनसेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. जब डबल बॉन्ड बीच में होगा तो यहाँ पे COH ग्रुप है, इसको हमेशा फर्स्ट नंबर देंगे. 1 2 3. तो प्रोपेन का कंपाउंड है प्रोप2-इन ओइक एसिड. इसका जनरल नेम है एक्रिलिक एसिड. इसी तरह ये है ब्यूटो-इनोइक एसिड. इनोइक मतलब इन इसके लिए लगाया है यहाँ पे, और ओइक एसिड इसके लिए लगाया है. ओइक एसिड 1 भी लिख सकते हैं और प्रोप2-इन ओइक एसिड भी लिख सकते हैं. नाउ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. व्हेन 2 COOH group is present, the acid containing 2 carboxylic groups are called dicarboxylic acid. Both the carboxyl groups are present at the end carbon atom of the carbon chain. The saturated carboxylic acid are represented by the general formula CnH2 and COO whole twice, where N is equal to 1, 2, 3, etc. The dicarboxylic acid are generally called by their common name. The common name are usually used on their source from which they are obtained, that is oxalic acid. It is found in plants of oxalis group. According to IUPAC system, the suffix dioic acid is added to the name of the present alkane, that is alkanoic acid. The formula and the name alkanoic acid तो मोनोकार्बोक्सिलिक होता है, alkadioic acid होता है इसका नाम. फार्मूला जैसे कॉमन नेम तो जहाँ से ये मिलते हैं उसके हिसाब से रखा जाता है. और IUPAC नाम देखो, ये डबल 2 कार्बन है, इसमें 2 COH ग्रुप अटैच है. इसका नाम होगा एथेन 1,2-डाइओइक एसिड. इसी तरह CH2 से 2 COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है. जनरल नेम है मेलोनिक एसिड. एंड IUPAC नाम प्रोपेन 1,3-डाइओइक एसिड. 3 कार्बन है यहाँ पे, तो हो जाएगा प्रोपेन 1,3-डाइओइक एसिड. CH2 COOH इधर है, CH2 COOH इधर कितने कार्बन? 1 2 3 4 है. जनरल नेम तो इसका सक्सीनिक एसिड है. इसका IUPAC नाम ब्यूटेन 1,4-डाइओइक एसिड. इसी तरह से ये ग्लूटेरिक एसिड है. CH3 3 है इसमें, यानी 1 2 3 हो गए. 4 5 पेंटेन 1,5-डाइओइक एसिड. ये एडिपिक एसिड का नाम होगा हेक्सेन 1,6-डाइओइक एसिड. नाउ सी दिस इज, इधर COH ग्रुप लगा है और इधर COOH ग्रुप लगा है. कार्बन किसी इधर से भी गिन सकते हो, इधर से भी. तो इधर चूँकि मेथिल ग्रुप इधर पास में है तो इस COOH ग्रुप को हम प्रेफरेंस देंगे. तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4. इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल ब्यूटेन 1,4-डाइओइक एसिड. इसी तरह से ये है, दोनों साइड इसमें COOH ग्रुप लगा है, लेकिन यहाँ इस सिरे से पास है COCH3 ग्रुप लगा हुआ है. ये कौन सा ग्रुप होता है? ओन ग्रुप होता है, कीटोनिक. नाम हो जाएगा 2,1-ऑक्सो इथिया भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1,4-डाइक एसिड. इसका नाम है अल्फा एसिटल सक्सीनिक एसिड, जनरल नाम है. अब ये है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड.
बेंजीन रिंग के साथ यहाँ OH ग्रुप लगा होगा तो ये कहलाता है बेंजीनोइक एसिड। अब ब्रोमो ग्रुप लगा है दूसरे कार्बन के साथ तो हो जाएगा 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। इसी तरह से यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है तो हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम है जब OH ग्रुप COOH के साथ लगा होता है तो कॉमन नेम है सैलिसिलिक एसिड। इसी तरह अमीनो ग्रुप लगा है COOH के साथ तो हो जाएगा ये, जहाँ से COOH ग्रुप लगा होगा वो हमेशा पहला कार्बन होगा तो 2 अमीनो बेंजोइक एसिड। इसी तरह इसका नाम है नाइट्रो ग्रुप लगा है 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। डबल COOH ग्रुप बेंजीन रिंग में लगा है तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कॉमन नेम है थैलिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, IUPAC नाम ये है। अब इस तरह से यहाँ आर्थो पोजीशन पे लगा है तो ये थैलिक एसिड, और जब ये पैरा पोजीशन पे चला जाए मेटा पोजीशन पे COOH ग्रुप लगा होगा तो ये आइसोथैलिक एसिड, और उसका नाम क्या होगा बेंजीन IUPAC 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस तरह से पैरा पोजीशन पे COOH ग्रुप लगा है तो ये टेराथैलिक एसिड कहलाता है। IUPAC नाम है बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं COOH ग्रुप के साथ तो हो जाएगा 2,4,6 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। एरोमेटिक एसिड कंटेनिंग COOH group in the side chain are considered as aryl substituted aliphatic acid। इस तरह से साइड चेन के साथ फेनिल ग्रुप लगा होगा तो इसको फेनिल ग्रुप कहेंगे, और ये क्या होगा एलिफैटिक एसिड, सब्स्टिट्यूटेड एलिफैटिक एसिड कहलाएगा। CH2COH तो इस चेन को हम लेंगे और ये हो जाएगा फेनिल ग्रुप, तो 1,2 यानी 2 फेनिल एथेनोइक एसिड। इसी तरह यहाँ डबल बॉन्ड है तो 3 फेनिल प्रो 2 इनोइक एसिड, यहाँ से ही हम लेंगे तो ये फेनिल ग्रुप है। 3 फेनिल प्रोप 3 कार्बन है प्रोप 2 इनोइक एसिड, ठीक है। इसका जनरल नेम है सिनेमिक एसिड। तो ये नॉमेनक्लेचर हो गया कुछ कंपाउंड के नाम, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम किस तरह से रखे जाते हैं। अब है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के भी अभी एग्जाम्पल ऊपर भी दिखाया है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंपाउंड इन विच 1 or more COOH group are attached directly to the aromatic ring। जैसे ये बेंजोइक एसिड, ये 2 मेथिल बेंजोइक एसिड, दिस इज थैलिक एसिड, दिस इज एरिल सब्स्टिट्यूटेड एलिफैटिक एसिड। अभी इसके नाम बताएं सबके। अब नाउ जनरल प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो फर्स्ट है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। एल्कोहल्स का जब रिएक्शन पढ़ा था उसमें ये रिएक्शन देखा था तुम लोगों ने। एल्कोहल को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या एल्कलाइन पोटेशियम KMnO4 के साथ या न्यूट्रल KMnO4 के साथ जब इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें मिलता है पहले एसेटल्डिहाइड और ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में। इसी तरह एथिल एल्कोहल का एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडेशन कराने में पहले ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फिर ये आगे रिएक्शन होता है। यहाँ दूसरा कंपाउंड यहाँ पे यूज़ हो रहा है एल्कलाइन KMnO4 के साथ, फिर इस एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है बेंजोइक एसिड। यहाँ पे ये चीज़ नहीं क्लियर की थी तो ये यहाँ दूसरे रिएक्शन में क्लियर कर दिया है। अब ये है कौन सा एसिड है, प्रोपेनॉल है, जिसका कि एल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट करते हैं इसको तो बनता है प्रोपियोनोइक एसिड। इसी तरह ये बेंजिल एल्कोहल, इसको KOH एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हीट करते हैं तो बनता है बेंजोइक एसिड। दिस इज दी लेबोरेटरी प्रोसेस।
Now aldehyde when treated with toluene reagent, that is ammonical silver nitrate solution, it forms acetic acid. Now by oxidation of acetone, ऑक्सीडेशन करते हैं एसीटोन का एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो हमें एसिटिक एसिड बनता है. नाउ हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स और नाइट्राइल्स. साइनाइड मीन्स CN कंटेनिंग कंपाउंड्स, मेथिल साइनाइड प्लस हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसका HCl या H2SO4 की प्रेजेंस में और एल्कली के प्रेजेंस में, तो हमें एसिटिक एसिड और अमोनियम क्लोराइड मिलता है. दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड. एरोमेटिक बेंजीन के लिए फेनिल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एल्कली या एसिड के साथ गर्म करते हैं, तो ये मिलता है बेंजामाइड. बेंजामाइड को ट्रीट करते डाइल्यूट HCl से, तो ये देता है बेंजोइक एसिड और अमोनियम क्लोराइड. Now by hydrolysis of trihalogen derivatives of hydrocarbon. ट्राईहाइलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ चुके हो, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म. तो क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, तो हमें मिलता है फॉर्मिक एसिड. ट्राईक्लोरो इथेन का रिएक्शन कराते हैं, वहाँ पे है 1 ट्राईक्लोरो इथेन का रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ, एक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH, तो -3 KCl अलग हो जाता है और पहले ये अनस्टेबल कंपाउंड बनता है जो कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड और H2O. इसी तरह बेंजो ट्राईक्लोराइड C6H5CCl3, इसका एक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो बनता है अनस्टेबल कंपाउंड जो कन्वर्ट हो जाता है बेंजोइक एसिड में. नाउ बाय कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का. ये है कार्बन डाइऑक्साइड है, O डबल बॉन्ड CO डबल बॉन्ड O, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, तो पहले ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, फिर इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कराने पे मेथिल एल्कोहल एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड बनता है. उसके बाद है ग्रिग्नार्ड रीजन एरोमेटिक ऑर्गेनिक रीजन, यानी फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन इट फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड्स विच गिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस benzoic acid. Now hydrolysis of ester, that is CH3COOC2 H5 ethyl methanoate reacts with H2O in presence of acid or base. This is formed CH3COOH, यानी acid plus alcohol. इसी तरह methyl benzoate when reacts with H2O in presence of acid or base, it forms benzoic acid. तो इस तरह से some properties of preparation of carboxylic acid थी ये, तो इनको तुम लोग फिर से देखना एक बार जो है और पढ़ना. अगले वीडियो में हम और बाकी जो मेथड प्रिपरेशन के रह गए हैं उसके बाद उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी बारी बारी से बताएंगे.